عقیدہ ہے, تمہارا کیا عقیدہ ہے, تمہارا کیا عقیدہ ہے, اس پہ فتنہ, تو تم لوگ خائن ہو. ایک دفعہ دیکھ لیا بس بات ختم ہو گئی نا. بھئی کوئی بھی انسان ہے, آپ سے کوئی پوچھتا ہے, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, جو سائل ہوگا اس کو جھڑکنا نہیں ہے ہم نے. لیکن معلوم ہو جائے کہ یہ خائن ہے, تب بھی معلوم ہو جائے کہ ڈونگ ہے, معلوم ہے کہ اس کے پیچھے وہ ایک فتنہ کرنا چاہتا ہے, تب جواب دینا ضروری نہیں. پیر صاحب جب وہ مبشر والا واقعہ ہوا تھا نا, اس وقت بھی یہ ملک صاحب نے اس کو منع کیا تھا پہلے کہ میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتا. کون مبشر؟ وہ جو ان کا انا موچی کے نام سے بھی آتا تھا. ہاں 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 ہاں, نہیں وہ کرتا ہے, مالک کر لیتا ہے, وہ جذباتی ہے, لیکن ان سب سے وہ بہتر ہے. جذباتی ہے, بس زبانی جلدی کر جاتا ہے, جلدی جو غصے میں آ جاتا ہے, لیکن شاطمیت نہیں کرتا اس طرح کولا ڈولا نہیں کرتا وہ. تو یہ کرتے ہیں. اب ان کے جماعت کے لوگ ہیں, اب یہ ہے کہ بس ان کو لے کر چلنا ہے. بھئی جماعت کے ہو یا جماعت کوئی اور ہو, تو آپ جانتے ہیں غلط ہے, بس غلط ہے, اس کو اجازت کیوں دیتے ہیں بھئی اس طرح کرنے کا؟ لیکن وہ اس کی مجبوری ہے. پتہ نہیں کون سی مجبوری میں وہ گرفتار ہیں, یہ تو ہم نہیں جانتے, لیکن ہے ضرور. برا کہتا ہے ان کو, غلط کہتا ہے ان کو. آپ نے دیکھا جب وہاں وہ کیا نام ہے, علیم بروڈ لگایا ہوا تھا, اس کا بیان موجود ہے, اس نے صاف بیان دیا, صحیح بیان دیا کہ تم لوگ غلط کرتے ہو. بات اس کی صحیح تھی, لیکن اکثر میں یہ ہمت نہیں ہے, اس میں یہ ہمت ہے. لیکن پھر بھی ایسے لوگوں کو بروڈ کا پورا انچارج اور پتہ نہیں کیا, اور ان کو وہاں بروڈ کا سارا کچھ ان کے ہاتھ میں ہے, یہ آ جاتے ہیں. اور یہ باقاعدہ بلایا جاتا ہے, ایسا نہیں جس سے آپ بات کر رہے تھے اسی نے کل ان کو بلایا. پہلے جٹ صاحب آتا تھا, وہ جٹ, لیکن جٹ آج کل وہ خاموش ہے. وہ ہے نا عمران جٹ ہے, کیا نام ہے ان کا, بہت زیادہ گالیاں دیتا تھا. عرفان جٹ. عرفان آج کل وہ نہیں کر رہا. شاید کسی نے سمجھایا ہوا یا اس کو خود بات سمجھ میں آ گئی کہ کیا طریقہ ہے یہ. پہلے کوئی بھی بات ہوتی اس کو ڈائریکٹ کال کر کے بلاتے تھے اور یہ گالی دیتا تھا. یہ خود سے نہیں ہے, یہ باقاعدہ پلان کے تحت کی جاتی ہے. آپ کسی بھی بروڈ پہ بات کر رہے ہوتے تو بلایا جاتا کس کو, جٹ کو, ڈائریکٹ وہ پہنچ جاتا تھا. تو کیسے؟ تو وہ تھوڑا سا خاموش ہے, لیکن یہ قانون اپنے کردار کو نہیں بدل رہا. وہ 1122 ہے, وہ بھی بہت ہی اس کا غلط کردار ہے, لیکن شاطمیت نہیں کرتا. وہ ان کے شاطمیت کو لیپا پوتی کر کے اصل میں تو یہ تھا, تم نے تو یہ کیا تھا, وہ کیا تھا, ایسے ایک کہانی بنا دے گا نا, آپ حیران رہ جائیں گے یہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے یا نہیں, یہ کسی اللہ کو جانتا بھی ہے کہ نہیں. ایسے تعویل کر جائے گا, آپ حیران رہ جائیں گے. اتنا بڑا جھوٹ. بھئی جو اللہ کو جانتا ہو, اللہ سے ڈرتا ہو, واقعتاً اس کا کوئی عقیدہ ہو, اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا. یہ اس طرح کی پلاننگ کرتا ہے, لیکن خود وہ شاطمیت نہیں کرتا. سمجھ رہے؟ اور تمام بروڈوں میں گھومتا ہے, وہ ریکارڈنگ پورا کرتا رہتا ہے. اور پھر ان کا ایک الگ اپنا بروڈ ہے, وہاں جا کر اس کو کاٹ کوٹ کے بنا کے پھر ان کو سمجھاتا ہے. اصل میں وہ ہوتا, ان کو معلوم ہی نہیں, ان کو پڑھاتا ہے سبق کہ یہ کہنا ہے, دیکھو یہ اصل میں یہ ہوا تھا, اصل میں وہ ہوا تھا, اس طرح کی باتیں. تو یہ پھر بھی تو پیر صاحب ذلیل ہی ہوتا ہے نا. ہاں, یہ کردار تو بہت خراب ہے. وہ ہے تو گنہگار, ان کا بھی گناہ اس کے اوپر ہے. ایک ہوتا ہے میں نے خود کوئی غلطی کی تھی کہ میں گنہگار ہوں, لیکن میں سبب ہوں دوسروں کو, وہ میری وجہ سے گناہ کر رہے ہیں, وہ بھی میرے اوپر. سمجھ رہے, وہ بھی میرے اوپر. اب جٹ گالی دے رہا ہے, وہ گنہگار ہے, لیکن سبب کون ہے؟ 1122. تو وہ تو گنہگار ہے, اس کے یہ جو کر رہا ہے اس کے گناہ بھی اس کے اوپر ہیں. یہ تو بڑا اس کا نیا نام ہے 111122 نہیں 1122. چلے وہ تو میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن اس کا کردار وہ ٹھیک نہیں ہے, کچھ ہے, اکثر نہیں ہے. اچھا وہ کتنی بار آنکھوں سے اپنی شکست دیکھ چکا ہے, ویڈیو کاٹ کے دی اس نے اس کو کالوں کو, وہ ضیاء بھائی والی, اس میں عبرتناک شکست ہوئی, پھر بھی وہ اس کام سے پیچھے نہیں ہٹتا. اور آج تک اس نے ویڈیوز کاٹ کے بنا کے حاصل کچھ بھی نہیں کر سکا. اس کے مقابلے میں علیم نے
लोगों की दी हुई वीडियोस या इधर उधर से एक दो वीडियोस लेके उससे बड़ा मकसद हासिल कर लिया। ना तो वो आज तक कोई मकसद हासिल कर सका है और ना ही इस काम से पीछे हटता है। अब उस दिन आपकी बराड़ पर वो मोहम्मद सुहेल नासर वो अपनी गलती पर माफी मांग गया, ये उसकी गलती को डिफेंड करने आया है। बिल्कुल, आप जिसकी देख लो गलती ना। को डिफेंड कर रहा है वो अपनी गलती की माफी मांग गया हाँ, और ये फिर भी कह रहा है कि यानी नहीं जिसने वो इस बात तरह और इस की तरह। वो समझ गया, जिसने बात की वो समझ गया कि वाकईतन उसने गलत किया है, तमाम लोग समझ गए, लेकिन उसने एक तावील निकाल दी। है कि नहीं? वो अजीब सा तावील निकाला था वो भी। क्या करें, दफा करो ऐसे लोगों से, क्या है। लेकिन वो गाली गलौच नहीं करता, ये बात है। गाली गलौच नहीं करता, शातमियत नहीं करता। ये 1112 है, गाली गलौच नहीं करता, शातमियत नहीं करता। किरदार इसका अच्छा नहीं है, बड़े प्यार से बात करेगा, अच्छा बात करेगा आपसे, लेकिन जितना आपने जो कभी बात कर रहा सुनी है ना आपसे, उसको नहीं रिकॉर्डिंग नहीं करके। आपने कभी सुनी नहीं है जब वो सहाबा के बारे में बकवास करता, आप कभी सुनिएगा वो करता है, कभी उसके साथ बात छेड़े वो बकवास करता है। मैंने तो नहीं सुना, बहरहाल मैंने नहीं सुना, मुमकिन है जब आप बोल रहे हैं हो सकता है, लेकिन मैंने जितना भी सुना है कभी नहीं सुना कि वो गाली गलौच करे या ये कि शातमियत पे आ जाए, मैंने नहीं देखा। मुमकिन है कि पहले क्या हो, वल्लाहु आलम। देखिए असल में होता क्या है, कुछ लोग आते हैं शुरू में, असल में होता क्या है कि कुछ लोग जो आते हैं शुरू में टिकटॉक में, तो वो बड़े, उनको मालूम ही नहीं कि होना क्या है, बस वो समझता है कि जो मुंह आया कह दिया, लेकिन आस्ते आस्ते वो समझ जाता है कि ये सारा कुछ मैं कर रहा हूँ ये मेरे लिए वबाल बनेगा, और बन जाता है उसके लिए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो संभल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वो सब चलते 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 एकदम नंगे हो जाते हैं, समझ रहे? अभी आपने कितना टाइम हुआ जो वो बट है जो बहुत ज्यादा गालियां देता, आपने कभी देखा अभी गाली देते हुए? कोई 2-3 महीने से नहीं देखा होगा। क्या वो आता है कभी किसी रोड पे झगड़ा चल रहा हो गाली देने के लिए? नहीं आता है। पहले कहीं पर भी कुछ हो ये आ जाता था, गाली देता था। ये मेरा गुमान है कि मुमकिन है कि वो कुछ समझ गया है, बाकी वल्लाहु आलम। हुसैनी उसको कब स्पेशल तक बुलाता इंसान, था कॉल करके। भाई साहब हुसैनी बुलाता था। हुसैनी तो है मुजरिम, हुसैनी तो गलत पट्टियां पढ़ाता है। और ये सब कहते हैं कि भाई वो नहीं है, नहीं 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 वो कादियानी नहीं, भाई वो पक्का टक्का कटर जो है वो लाहौरी है, समझ रहे? ऐसे ही और एक दिन उसको पकड़ा था इसने, वो क्या नाम है, वो पठान का क्या नाम है, ताहिर खान, बाकायदा उसके मुलाकात है। हाँ उसके मुलाकात मुनव्वर है हुसैन साहब जी। कैसे हो, मलक मुनव्वर साहब हाँ कैसे हो, कहता है मलक मुनव्वर खान साहब कैसे हो। हाँ, और उन्होंने डायरेक्ट कहता अच्छा अच्छा तो आप वो हैं मुनव्वर साहब हैं, वो जो पिलाने जगह पे हम लोग जो, सीधा उसको गिराया, सीधा उसको गिराया और आगे कहा नहीं 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 मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको नहीं जानता, मेरी आपकी कोई मुलाकात नहीं है। मैं मौजूद था और मैं जानता हूँ वो जो बता रहा था सच बता रहा था, लेकिन इस बंदे ने नहीं माना। वजह क्योंकि अपने आप को शो नहीं करना चाहता है ना, शो नहीं करना चाहता है। मैंने भी जाके उसके कमेंट में जाके लिखा, मैंने कहा मलक मुनव्वर साहब क्या हाल है, आपके साथ मुलाकात हुई थी, मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने दूसरी आईडी से लिखा, उधर से भी पीर ब्लॉक कर साहब, दिया मुझे। जी जी, पीर साहब वो मुल्हिद है, मुल्हिद, वो लाहौरी भी नहीं है, वो मुल्हिद। भाई आप अजीब बात करते हैं, यही तो मुश्किल है। क्या बाकी मुल्हिद नहीं है? है भाई अजीब बात। कादियानी मुल्हिद हैं,
मुल्हिद तो फिर हैं बात ही खत्म हो गई। लेकिन अब्दुल्ला ये कोई नई डेफिनेशन निकाली वो है अपने आप को मुल्हिद कहते नहीं है ना, लेकिन ये वो कौन सा कहता है नो अपने ना आप के एक नजर तो आते हैं यार, कहने की जरूरत नहीं है, जो जाहिर होता है वही होता है। क्या ये क्या अकीदा है भाई? नमाज नहीं है, जन्नत जन्नत नहीं है, आसमान आसमान नहीं है, जमीन जमीन नहीं है, आदम पहला आदम नहीं है, अल्लाह ऊपर ये नहीं जो है, है अल्लाह हर हाँ जगह पे है। हर जगह रूहानी कलाम है, ये जो है इस्तारे के रंग में है। वल्लाह ये बिल्कुल अपने ब्रोडों पे मैंने इनको सुना, तो लज्जी को भी सुना हुआ है। कहते हैं मिर्जा जी से पता पड़ा कि वो नमाज पढ़ते थे, वरना कहता है कि वो पढ़ता ही नहीं था। अब मिर्जा जी ने पढ़ा है तो चलो पढ़ लेते हैं। निज़ाम नमाज से मिलता क्या है? साहब उसने कहा उठक बैठक से मिलता क्या है, कहता है। लेकिन ये हमें मालूम हो गया, कन्फर्म हो गया कि हाँ मिर्जा जी पढ़ते थे इसलिए पढ़ते हैं, समझे। और जन्नत, ये जन्नत क्या है, हूरें क्या है, ये कैसा होगा? ये रूहानी कलाम है, रूहानी, समझ रहे। तो ये वो इनका अकीदा है, अल्लाह के सिफ़ात के मुनकर, अल्लाह के जो है मखलूक़ात के मुनकर, जन्नत के मुनकर, जहन्नम के मुनकर, और वो क्या नाम है अपना इसको क्या कहते हैं, फरिश्तों के मुनकर, जन्नात के मुनकर। मानते किस चीज़ को हैं? पीर साहेब जी- पाउंड और जी। यूरो को मानने वाले। नहीं, जिल्ल और दज्जाल के बुरूज, मुनकर, शैतान के हाँ, मुनकर। दज्जाल के मुनकर, शैतान के मुनकर, मलाइका, मलाइका आपके अच्छे काम, शैतान आपके बुरे काम। मानते किस चीज को है? आप कहते हैं कि वो मुल्हिद है भाई, कि ये सब मुल्हिद है भाई। पक्के और सच्चे अहमदी पाइन भी आपको सुन रहे नीचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महमूद भाई क्या हाल है? बस मैं महमूद खिलाने के लिए आया था, और क्या। बड़ी मेहरबानी सर आपकी। महमूद भाई कल जो है गुफ्तगू के दौरान आप ऐसे ऐसे गायब हुए जिस तरह जो है वो शेर के सर से सींग गायब हो जाते हैं। अब आप शेर कह रहे हैं, जानवर बदल दिया आपने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बात ये है सानी भाई, हम अपने भाई की जो उस पे इल्ज़ामात गलत लगते हैं ना, वो बर्दाश्त नहीं होते, तो बेहतर है फिर इंसान चला ही जाए। वो किसी ने क्या खूब पढ़ा है कि दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, तो उससे बेहतर है कि दीवारों में टकरे मार ली जाएं, लेकिन फजूल बहस से क्या फ़ायदा। ये मसूद साहब, ये किसी जमाने में ये सुना हुआ बड़ा मजा आता था, एक सुकून आता था ये पढ़ के। तो आसकानी भाई, आज भी आपके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे, तो मैं तो आज भी जुमा पढ़ने चला गया। मैंने कहा छोड़ो यार, कोई फ़ायदा नहीं, खाम खा गुनाहगार हो रहे हैं लोग। नहीं, इनके पीछे पढ़ते नहीं है, ये अपने पीछे पढ़वाते हैं। हाँ, तो कुछ ऐसा, कुछ इसी तरह का सिलसिला था। अब क्या किया जाए। आसकानी भाई समझते हैं कि हर कोई कम से कम मैट्रिक पास तो है ही। इन्हें ये नहीं पता कि गांव से वो लोग भी उठ के आ गए हैं जिनका दीन से कोई लेन देन भी नहीं है। ये नहीं जानते। नहीं नहीं, इस्कानी साहब की जो तलीम उनकी हुई हुई है वो बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है। उनका जो है नेचर जो है देखने का जो तरीका है उनका, वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। कि अगर कोई कलमा गो है, सही कलमा गो है, ये नहीं कि ये हम बराडू पे बैठ के कहते हैं कि नहीं कलमा गो तो मरदई भी हैं, नहीं, वो उनको छोड़ के हट के जो कलमा गो है उसके साथ तस्कानी साहब का रवैया जो है ना वो दूसरों की तरह नहीं होता। हाँ, कोई गाली बात हो या कुछ हो तो ये फिर भी उनकी सलाह करने के लिए बीच में जंप लगाते हैं। अपनी वो कोशिश करते हैं, अपने आप की सफाई अल्लाह को दिखाने के लिए वो काम पूरा करते हैं। जी, ये अल्लाह ही है जिसने कहा है कि कालू सलामा और आगे बढ़ जाओ। क्यों कहा अल्लाह ने ऐसा? कोई तो वजह होगी। आसकानी भाई बोलिए ज़रा, महमूद को कुछ समझाइए। मसूद को तो नहीं समझा पाएंगे, महमूद ही को समझा दीजिए। नहीं, वो असल में जिसको हम पेश करते हैं ना, वो सियाक और सवाक हमें मालूम नहीं है पेश करते हैं। हर आदमी पेश करता है बस कालू सलामा,
हाँ जी, इदा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। सलाम। ये इससे आप क्या समझे हैं भाई, जरा थोड़ा सा बता दीजिए ताकि मुझे भी मालूम हो। इसकी पिछली आयत पढ़ी है जरा, पिछली आयत अभी आपने क्या पढ़ी, जाहिलून क्या नहीं, पढ़ी एक ही है? आयत है, ये एक ही आयत है। हाँ, लेकिन वइदा पिछला हिस्सा जो पढ़ा, वइदा खातबहुमुल जाहिलून इसका क्या मतलब है, जरा उर्दू में ट्रांसलेट कीजिए। क़ालू सलामा। मैं तो करूँगा, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप इससे क्या समझे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, जरा पिछला हिस्सा तो पढ़े ना इसका उर्दू में। अरबी में उर्दू, पढ़ेंगे तो हम सीधे साधे लोग हैं, हमें नहीं समझ में आएगा। जी। जरा इसका जब उर्दू तर्जुमा कीजिए। जब आप जब जब जाहिल लोग मुखातिब हों तो उन वक्त जी उनसे कहो कि बस आप पर सलामती हो। जी हाँ जी, ये तर्जुमा आपको मिलेगा, लेकिन ये जी। तर्जुमा 100% गलत है। अच्छा 1% नहीं, जी जी, अच्छा, एक नहीं, 110% गलत है। सही क्या है आप ये बताइए, सही क्या है? सही ये है कि जज्बाती लोग जब आपसे गुफ्तगू करें तो आप उनको सलाम कहिए, बस थोड़ा किनारा कश हो जाइए, क्योंकि फिर आपने बात करना है उनसे। असल में निकलने का सबब ये है क्योंकि वो रिश्ता नहीं तोड़ना है, सही मैसेज उनको देना है। ये जज्बाती इनको नहीं मालूम, यानी कि फॉर द टाइम मीन वो जज्बे में है और उस जज्बे में जज्बे है। के मुताबिक लग तो रहे हैं। उनको थोड़ा सा फिलहाल सर पे नजर कीजिए, क्योंकि बाद में आपने आना है, दावत तो इन्हीं को देना है। वो चलें इस तरह दूसरी, भी ले लीजिए इसको। अब तो सुन फिर लीजिए ना, सुन अच्छा लीजिए ना, सुनाइए थोड़ा सुनाइए। सा मजीद मैं आपको दलील देता हूँ। हाँ, फला तकूनन्न मिनल जाहिलीन, किसको कहा? जाहिलों को। नहीं, नूह अलैहिस्सलाम को। मसूद साहेब, हाँ मसूद जी, साहेब, बड़े दुख की जो है ना दास्तान पेश हो गई है आज। आज आगे। अच्छा, आपके ये खान साहब आज आपके खान साहब का रजब, केस का फैसला हो गया और 14 साल की सजा हो गई है। जी जी मुझे पता है, अल्लाह ताला अच्छा उस भाई, पे रहे। टाक मास्टर को उठाइए, मेरा जो है वो पुराना दोस्त है बेचारा, काफी गैस भरा होगा, आसकानी नहीं मिला है, किसको कोस सकते निकाल हैं में थोड़ी आसकानी। दी डॉक्यूमेंट साहब, अगर रिक्वेस्ट डालें आपकी आईडी आपने दिली बरूजी की होती है। उसका आसकानी माशाल्लाह पे चलता है माशाल्लाह बेचारे का, माशाल्लाह, किसी और पे मुबारक हो चलता ही फिर नहीं। तो मसूद साहब। वो डाक आके मास्टर को मुझे ही बोल देते हैं। डॉक्यूमेंट साहब रिक्वेस्ट डालें तो हम आपको ऐसे क्रेन से ऊपर उठाएं। हाँ। नहीं, असल में बेचारे का किसी पे चलता नहीं, थोड़ा सा डर जाता है, तो उसको आसकानी मिला हुआ है दुनिया में कि वो उसको डाक कोसना मास्टर भी साहब आई है। आपके ऊपर ही चलता है, किसी के ऊपर नहीं बाकी चलता। नहीं चलता बेचारे का, किसी का नहीं चलता। आ जाइए मास्टर जी, कोसिए कुछ। और मास्टर साहब, वकील साहब, हमारे पंजाबी में मसाल है कि कौन है मरन जोगा, मैं या सिर्फ तेरे जोगा। तर्जुमा। मर जाने कौन हो मैं हूँ जो सिर्फ तुम्हारा ही हूँ। मास्टर साहब आइए, बुलंदो बाला बाकी आइए आपस आप। में डायलॉग चल रहे होते हैं ना, वो ना करता है, डोर ना करता है ना, तो बाहर अंदर से आवाज आती है, अबे मर जाने कौन है बाहर, वो कहता है मैं हूँ जो तुम्हारा हस्बैंड हूँ। उसको पंजाबी में जो बड़ा अच्छा जो उन्होंने किया हुआ है। नहीं कोई नहीं थले टाक मास्टर साहब। आमिर भाई आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है किसी को? पीर साहब, मलक साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है आपकी आवाज यूसुफ साहब, आ रही है। अब्दुल्ला भाई, अब बताइए, मेरी आ रही है? टाक मास्टर साहब नीचे नहीं है? नहीं, वो जी आ रही है। आए हुए थे, शायद चले गए, या असल में उन्होंने लगाया हुआ है, वो क्या कहते हैं कि नजर ना आए, जिल्ली बुरूजी, अच्छा वो ज्यादा बेहतर है। तो इस्तारे के रंग में आते हैं, वो मैंने देखा था, वो नजर नहीं आता, तो वल्लाहु आलम क्या है, शायद चले भी गए हों, आए हुए थे लेकिन।
اصل میں مجھے افسوس اس بات کا ہے، دکھ اس بات کا ہے، کیونکہ وہ میرا دوست ہے بیچارہ 25-26 سالوں سے، یہ آس لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ نبی کب بنے گا۔ دیکھو کتنے افسوس کی بات ہے، ابھی تک نبی نہیں بنا، یعنی یہ آس لے کر توبہ جو ہے وہ استغفار. دنیا سے رخصت ہو نہیں۔ بھائی ان کا عقیدہ ہے نا، ان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، اب 75 سال سے وہ کر رہے ہیں، اب وہ اس انتظار میں کہ بنے گا کب نبی، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے صاف انہوں نے کہا ہے، میں نے ان سے پوچھا، کہتا ہے ہاں لیکن ذلی بروزی نہیں، نبی کا تو کیا شان ہے، لیکن یہ ذلی بروزی یہ نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا بھئی اللہ پاک نے اگر دینا ہی ہے تو شان کے ساتھ ہو، ذلی بروزی ہے، غیر حقیقی ہے، غیر شرعی ہے، استعارے کے رنگ میں ہے، بولو نہیں، جہاں نبی دیکھو کاٹو، یہ کیا طریقہ ہوا؟ یہ کوئی انعام ہوا؟ کہتے یہ نہیں چاہیے۔ نہیں، یہ بیچارہ عقیدہ ان کو دیا کس نے ہے؟ جی وعلیکم السلام. مرزا جی نے نا، یہ عقیدہ ان کو دیا مرزا جی نے، یہ عقیدہ نہیں دیا ہوا. ہاں یہ کس نے دیا ہے؟ یہ تو ان کے مربیوں نے ان کو دیا ہوا ہے. یہ ہاں شہرائی ان کے مربیوں نے کی ہوئی ہے. اچھا، تو پھر ظاہری بات ہے، آپ دیکھ لیں، اب وہ بیچارہ اور اسی پیر آس صاحب، میں ہے۔ جی آپ سے ایک شکایت تھی، آپ نے طارق چوہان صاحب کو کیا کیا؟ آپ کے پاس بیٹھتے تھے، اب کسی بھی براڈ پہ چلے جائیں وہ چوتھا گیئر لگا کے ادھر سے شروع کرتے ہیں بات، لڑائی 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 اور بس لڑائی۔ کیا کیا ان کو؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، میرے تو ان سے کوئی گفتگو نہیں۔ نہیں، آپ کے پاس ہی بیٹھتے تھے آج کل زیادہ تر، تو اب کسی بھی براڈ پہ چلے جائیں وہ جناب جی سیدھا ہی لڑائی شروع کرتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم بھائی جان، پس منظر مجھے نہیں معلوم۔ کیوں عبداللہ بھائی، آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں طارق چوہان صاحب کو؟ ہاں، اصل میں وقت ہوتا ہے نا، ایگزاسٹ ہو چکے ہیں نا. پیر صاحب نے ہلکی ہلکی لیکن بہترین منجی ٹھوک کیا ہے ہلکے الفاظ میں. تو اب جواب نہیں ہے، جائیں تو جائیں کدھر؟ آج اس لیے پیر تو صاحب یہ قصور ٹاک آپ کا ماسٹر ہے۔ صاحب کو میں نے دیکھا، پہلے کبھی نہیں دیکھا. وہ نیچے ہر براڈ کے نیچے نا کمنٹ کر رہے ہیں، وہ جس طرح یہ چھوٹے چھوٹے مرزیہ آ کے کرتے ہیں نا، نادان، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، یہ کمنٹ کر رہے تھے. پیر صاحب، آپ نے ان کی نا کوئی غلط سوئچ آن کر دیا ہے بٹھا کے، وہ نہیں نہیں دیکھیں نہیں غور کریں۔ نہیں نہیں نہیں، میری طرف سے کوئی بات بھی نہیں ان سے، اور نہ انہوں نے کوئی بات کی، بلکہ 2 دن پہلے، یہ آج اور کل نہیں ملے، تو 2 دن پہلے، مطلب 3 دن پہلے، تو آج 3 ہو جائیں گے، اور میرے بروڈ پہ آئے ہوئے تھے. میں نے ان کو کہا تھا کہ بھائی یہ جو آپ کا عقیدہ ہے، جو آپ اختلاف رکھتے ہیں، یہ جماعت خلیفہ والی، ان سے اختلاف رکھتے ہیں، آپ کے پاس ٹھوس ثبوت کیا ہے مرزا جی سے؟ تو یہ میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں، واقعہ میں ان سے سمجھنا چاہتا تھا کہ ہے کیا، کہاں سے، اور یہ نہیں کہ مناظرے کی شکل میں. یہ نہ سوچئے کہ میں آپ کو رد کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، ہم تو آپ کے اس عقیدے کو بھی نہیں مانتے، اس کو بھی نہیں مانتے، یہ تو آپ جانتے ہیں، لیکن میں اس کو جاننا چاہتا ہوں آپ کیوں اپنے آپ کو صحیح احمدی یا مرزا جی کے ماننے والا کہتے ہیں اور ان کو نہیں کہتے؟ وہ کون سی دلیل ہے؟ کیونکہ وہ بات کرتا ہے زبانی کلامی، میں نے تو بہت سنا کہ مرزا جی نے یوں کہا، مرزا جی نے یوں کہا. میں نے کہا وہ تمام چیزیں آپ مجھے دیں. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے 1-2 دن چاہیے. کہا میں سمجھ گیا. میں نے کہا غصہ نہیں کرنا، ایسا نہیں کہ غصہ کر جاؤ گے، میرا ارادہ یہ نہیں ہے کہ میں تم سے مناظرہ کروں، بلکہ میرا ارادہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کا عقیدہ ہے کس بنیاد پہ آپ صحیح ہیں اور وہ غلط ہیں، میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں، اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. جس طرح سے احمدیوں کے بہت سارے عقائد ہم جان چکے ہیں، ان کو پڑھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں. اب میں یہ انہوں نے کہا ٹھیک، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں تمام جو ہے وہ دلائل اکٹھا کر لیتا ہوں. میں نے کہا جتنے بھی ہوں، بھلے 1 دن چلے، بھلے 2 دن چلے، میں یہ اپنے بروڈ پہ آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں. وہ اسکین بھی دے دیں گے، ان کو بھی دیکھ لوں گا، دونوں مل کے میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعتاً آپ صحیح ہیں اور وہ غلط ہیں. انہوں نے وعدہ کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، ایسے ہی کریں گے. اور یہ ماسٹر جی جو ہے نا، ان کا بھی یہ خواہش ہے، اور انہوں نے بھی 1-2 دفعہ، اصل میں یہ میرے دل میں اس لیے بات آ گئی کیونکہ بار بار ماسٹر جی وہ مجھے کہنے لگے کہ جذباتی ہو جاتے ہیں، بتاتے نہیں، اور تھوڑا سا وہ جذباتی ہو جاتے ہیں.
चौहान साहब। तो मैंने कहा ठीक है इंशाल्लाह, दिल में मैंने ये सोच लिया कि मैं मना लूँगा उनको, तो वो मान जाएंगे, और मान गए। कहा ठीक है इंशाल्लाह। उसके बाद नहीं आए मेरे रोड पे, नहीं मिले। इतनी सी बात हुई बड़े अच्छे अंदाज में, उसके बाद नहीं मिले हैं भाई जी। बात कीजिए भाई, क्यों बात नहीं कर रहे? ठीक। जी जी, सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, ये मसला बना है। बेसिकली तो मुसलमानों के जो सवालात हैं वो तो मिर्ज़ा साहब पे हैं। अब देखा जाए तो मिर्ज़ा साहब की तालीम वाकई जो सीधी बात है ना, सही बात, मिर्ज़ा साहब की जो तालीम है ना, उनकी कुतुब के सबसे ज़्यादा नज़दीक जो है ये जंबा ग्रुप ही है। लेकिन जाएं तो जाएं की तरफ, मुरब्बियों से भी जान छुड़ा के तो जंबा साहब के पास आ गए। अब जो सवालात हैं मुसलमानों के, वो लेकर जाएं तो जाएं कहाँ, वो तो उधर के उधर ही हैं। मुसलमानों के सवालात तो मिर्ज़ा साहब के मुतल्लक है, मुअम्मा तो हल करना मिर्ज़ा साहब का। कितने टुर गए भाई, कितने टुर गए? आमिर भाई कितने टुर गए? और मलिक कैसर साहब आप कहाँ चले गए? सोने का टाइम नहीं है, मलिक साहब का सोने का तो टाइम है नहीं। मैं फादर। मलिक जी कितने टुर गए हैं? I'm not doing like this, but I help you 40 and you owe me. How much? 40. 40 rand. And when I can come to shop to get it? Inshallah, tomorrow. If you don't come tomorrow, then I will come in the shop.
Tomorrow we're gonna come. Can you see my face? I can't hold you. I know. I'm going. जी साहेब जी सर साहब, जी भाईजान, मैं हूँ सुन रहा हूँ आपको। तुम्हारा अच्छा काम, जाएगा नासिर, गम न कर, जिंदगी पड़ी है अभी। tomorrow you have to come. I'm not coming tomorrow. You have to give my money. और Just जिस तरह का कस्टमर हो फिर उस तरह का उससे बोलना पड़ता है। काला आएगा तो उसके साथ उस तरह का स्टाइल होगा, जी, तो जी। कोई इंडियन आएगा उस तरह का, कोई गोरा आएगा उस तरह का। जी जी जी, हाँ, फिर उसी स्टाइल में बात करनी पड़ती है ना, तभी वो समझते हैं फिर। सही सही। काले की इंग्लिश जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है ना, वो तोड़ के लफ्ज बोलता है, चले, इसलिए। नो प्रॉब्लम हबीबी। और ये मलिक साहब कहाँ तुर गए? मलक साहब अभी क्वाइट हो गए। भोजन कर रहे हो? वेलकम टू भाई। वालेकुम सलाम। तो अल्लाह अल्लाह करके हमारे महमूद साहब कहाँ चले गए भाई? आज बड़ी दुख की घड़ी है मसूद साहब के जो हीरो हैं उनके लिए। अच्छा, हुआ क्या है वैसे, थोड़ी सी अगर बताना चाहें। वो उनके ऊपर एक केस था, खान साहब के ऊपर, जो है वो कादर ट्रस्ट जो उन्होंने बनाई थी, हाँ, कोई इस्लामिक स्टडी साथ में थी, कुछ इस तरह की यूनिवर्सिटी थी। एक मिनट दे दीजिए, एक मिनट रुकिए।